ahkase ketkin brosa lab ohkatin bahanta ashkar bekese ketkin brosa. हम प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे 24, 25, 26 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से. चैप्टर 24 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. For their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief. Through wisdom is an house builded, and by understanding it is established. And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. A wise man is strong, yea, a man of knowledge increaseth strength. For by wise counsel thou shalt make thy war, and in multitude of counselors there is safety. Wisdom is too high for a fool. He openeth not his mouth in the gate. He that deviseth to do evil shall be called a mischievous person. A thought of foolishness is sin, and the scorner is an abomination to men. If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain, if thou sayest, Behold, we knew it not, doth not he that pondereth the heart consider it? And he that keepeth thy soul, doth not he know it? And shall not he render to every man according to his works? My son, eat thou honey, because it is good, and the honeycomb, which is sweet to thy taste. So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul. When thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off. Lay not wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous. Spoil not his resting place. For a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth, lest the Lord see it, and it displease him, and he turn away his wrath from him. Fret not thyself because of evil men, neither be thou envious at the wicked, for there shall be no reward to the evil man. The candle of the wicked shall be put out. My son, fear thou the Lord and the king, and meddle not with them that are given to change. For their calamity shall rise suddenly, and who knoweth the ruin of them both? These things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment. He that saith unto the wicked, Thou art righteous, him shall the people curse, nations shall abhor him. But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them. Every man shall kiss his lips that giveth a right answer. Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Be not a witness against thy neighbor without cause, and deceive not with thy lips. Say not, I will do so to him as he had done to me. I will render to the man according to his work. I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding. And lo, it was all grown
over with thorns and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, and a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Chapter 25. Observations about kings, about avoiding quarrels, and sundry causes thereof. First verse. These are also proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out. It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search out a matter. The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable. Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the finer. Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness. Put not forth thyself in the presence of the king, and stand not in the place of great men. For better it is that it be said unto thee, Come up hither, than that thou shouldest be put lower in the presence of the prince whom thine eyes have seen. Go not forth hastily to strive, lest thou know not what to do in the end thereof, when thy neighbor hath put thee to shame. Debate thy cause with thy neighbor himself, and discover not a secret to another, lest he that heareth it put thee to shame, and thine infamy turn not away. A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver, as an earring of gold and an ornament of fine gold. So is a wise reprover upon an obedient ear, as the cold of snow in the time of harvest. So is a faithful messenger to them that send him, for he refresheth the soul of his masters. Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain. By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone. Hast thou found honey? Eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith, and vomit it. Withdraw thy foot from thy neighbor's house, lest he be weary of thee, and so hate thee. A man that beareth false witness against his neighbor is a maul, and a sword and a sharp arrow. Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint. As he that taketh away a garment in cold weather, and as vinegar upon night air, so is he that singeth songs to an heavy heart. If thine enemy be hungry, give him bread to eat, and if he be thirsty, give him water to drink. For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the Lord shall reward thee. The north wind driveth away rain, so doeth an angry countenance a backbiting tongue. It is better to dwell in the corner of the housetop than with a brawling woman and in a wide house. As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country. A righteous man falling down before the wicked is as a troubled fountain and a corrupt spring. देखिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। 26th वचन।
27. It is not good to eat much honey, so for men to search their own glory is not glory. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Proverbs 26 चैप्टर पढ़ेंगे. Of fools, sluggards and busybodies. First verse से पढ़ेंगे. As snow in summer and as rain in harvest, so honor is not seemly for a fool. As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come. A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back. Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. He that sendeth a message by the hand of a fool cutteth off the feet and drinketh damage. The legs of the lame are not equal, so is a parable in the mouth of fools. As he that bindeth a stone in a sling, so is he that giveth honor to a fool. As a thorn goeth up into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth of fools. A great God that formed all things both rewardeth the fool and rewardeth transgressors. As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly. Seest thou a man wise in his own conceit? There is more hope of a fool than of him. The slothful man saith, there is a lion in the way, a lion is in the streets. As the door turneth upon his hinges, so doeth the slothful upon his bed. The slothful hideth his hand in his bosom, it grieveth him to bring it again to his mouth. The sluggard is wiser in his own conceit than 7 men that can render a reason. He that passeth by and meddleth with strife belonging not to him is like one that taketh a dog by the ears. As a mad man who casteth fire brands, arrows, and death, so is the man that deceiveth his neighbor and saith, Am not I in sport? Where no wood is, there the fire goeth out. So where there is no talebearer, the strife ceaseth. Hallelujah. As coals are to burning coals and wood to fire, so is a contentious man to kindle strife. The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Burning lips and a wicked heart are like a pot's hold covered with silver dross. He that hateth dissembleth with his lips, and layeth up deceit within him. When he speaketh fair, believe him not, for there are 7 abominations in his heart. Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be shewed before the whole congregation. Whoso diggeth a pit shall fall therein, and he that rolleth a stone, it will return upon him. A lying tongue hateth those that are afflicted by it, and a flattering mouth worketh ruin. नीति वचन 24 अध्याय 25 अध्याय 26 अध्याय पढ़ेंगे BSI बाइबल में से.
थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। हालेलुया। विजय बहुत सी मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा, क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी, क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा। हालेलुया। और तेरी आशा न टूटेगी। 15 वचन से आगे, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। थैंक यू जीसस। 16 वचन, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तो आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। हालेलुया। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। ओ माय गॉड। 19 वचन, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य के को अंत में कुछ फल न मिलेगा। क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। मैंने आपको कुछ वचनों को सिखाते वक्त बताया था ना, केवल धर्मियों का वंश रहेगा, दुष्टों का दिया खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आप उसमें से बाहर निकलना है, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में आना है। आप धर्मी हो जाएंगे और आप बचाए रखे जाएंगे। 21 वचन आगे पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना। ओके। क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। बलवा करने वाले के विषय में देखो क्या लिखा है, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। यहोवा की ओर से भी आती है विपत्ति, और अधिकारी पदों के ऊपर अगर कोई है तो उनसे भी आती है विपत्ति। ओके, तो यहोवा और अधिकारी पद पर जो रहेगा उन दोनों को बलवा नहीं करना है, रिबेल नहीं करना है, ढीठपन नहीं दिखाना है। ओके,
दोनों की ओर से विपत्ति छोड़ी जा सकती है। कुछ और नीति वचन, बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। 23 वचन मैंने पढ़ा, आगे पढ़ते हैं और एक बार पढ़ेंगे 23 वचन। बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। 25 वचन और एक बार देखो, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है। ओके और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। ओके तो आपको समझ में आना चाहिए, जब कभी मेरे रिकॉर्डिंग्स में मैं दुष्ट के विरोध डांट फटकार चढ़ा देती हूँ तो मेरा भला हो जाता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद मुझ पर आ जाते हैं। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। 27 वचन से आगे, अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। बहुत प्यारा वचन है ये। 28 वचन आगे, व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसलाना। 29, फुसलाना भी नहीं, उसको लालच में भी नहीं गिराना, किसी भी लालसाओं में भी उसको नहीं लाना है। 29 वचन से आगे, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूँगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। ये आलसी का रिजल्ट है। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। बहुत बार मैंने ये स्पिरिट से मार खाया है, आलसी और निर्बुद्धि। ओके 32 वर्ष, तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। मैंने भी ये स्पिरिट का जब पढ़ा ये वचन तो मैंने भी कुछ शिक्षा प्राप्त किया और तब से मैं सुधर गई। ओके देखो क्या लिखा है 33 और 34 वचन। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। डेंजर है ना, इसके लिए चौकस रहना है। जब परमेश्वर का वचन कहता है तो कहता है, बस मान लेना है उस बात को। राजा सुलेमान के अन्य नीति वचन 25 अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से। सुलेमान के नीति वचन ये भी है, जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। 2 वचन से आगे, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। देखो ये वचन जो है ये हमारे लाइफ में काम कर रहा है। ये जो भी बादशाह के बारे में कहा गया है सब वचन हमारे लिए काम करता है। ये 5 वचन देखो, जब हमारे बीच में से दुष्टता हटा दी जाती है तो हमारा परमेश्वर के नियमों में बने रहना आसान हो जाता है। ओके, राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना।
क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान न हो, वरन तुझसे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। ये सीक्रेट है, हम बोल तो देते हैं लेकिन फिर हमारी निंदा बनी रहती है। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने की सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। हालेलुया। मानने वाले के कान में, ओके। जो नहीं मानता है उसके सामने तो कुछ भी कहो, लेकिन मानने वाले के लिए वो बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसा कटनी का समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना। ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक। ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पांव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। ओह जीसस। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। ये जो लिखा है ना, अंगारे डालेगा, ये बहुत लोग समझते हैं कि वो शत्रुओं पर कुछ तो क्या पीड़ाओं का अंगारा, ऐसा समझते हैं। ये वो अंगारा नहीं है। अंगारा शुद्ध करने के लिए स्वर्गदूतों ने उठाकर भविष्यद्वक्ता के होठों को लगाया था और उसे कहा था, अब तू नबी है और तेरे होठ शुद्ध हो चुके हैं, अब तू जो बोलेगा वो राष्ट्र राष्ट्र तेरी सुनेगा, तेरी मानेगा, और तुझे बोलना है, डरना नहीं है मनुष्यों से। तो इस प्रकार से अंगारा काम करता है। परमेश्वर के वेदी के ऊपर भी शुद्धता को लाने के लिए ऐसा बोला गया है कि जो सोने को शुद्ध करता है, उस तरह का अंगारा, उस तरह का आग का, जो कोयले का धधकता हुआ आग रहता है, वो अनॉइंटिंग है, वो अभिषेक है, ओके, जो पाप को जला देता है, जो पाप में से पश्चातापी हृदय को उत्पन्न करता है, जो पाप को घृणा करना सिखाता है। तो ये वाला इसका मतलब है। वो नहीं कि आप उसकी सहायता करने से उसको आप कुछ पीड़ाएं देने वाले हैं, अंगारे की जो चटके होते हैं वैसे पीड़ाएं उसके लाइफ में डाल रहे, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल इस बात को आप भूल जाइए कि आप उसको कुछ पीड़ाएं देने का काम कर रहे हैं। ऐसा करने से नहीं, आप उसको पश्चाताप हृदय आने का रास्ता बना कर दे रहे हैं, ओके। उसके ऊपर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उतरने का, परमेश्वर का कंज्यूमिंग फायर बोला है, वो पाप को जला देता है और पवित्रता को ऊंचा होने के लिए रास्ता बना देता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, कभी भी ये बात को आप फॉलो कीजिए कि आपने अपने कोई भी हो उनके लिए ये परमेश्वर का काम ज़रूर करना है आपने, और परमेश्वर हमको इसका फल भी देगा।
क्योंकि हमने परमेश्वर के रास्ते उनके लाइफ में खोले इसीलिए। 23 वचन से आगे, जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। चुगली का आत्मा से ये होता है, हमारे मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। 26 अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से। जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गोरैया घूमते घूमते और सुप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गदहे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना। ये मेरे लिए सबक है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तो भी उसके तुल्य ठहरे। मेरे लिए लेसन है ये। ओके, मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। वो बुद्धिमान ठहरेगा, हम मूर्ख ठहरेंगे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है वह मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। वो हमेशा ठट्टों में उड़ाने वाले नीति वचन बोल देते हैं, लोगों को दुख पहुंचेगा ऐसे। ओके, 8 वचन से आगे पढ़ेंगे। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ और नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता है, वैसे ही मूर्खों का राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है, मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है।
जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो। वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। देखो 24, 25, 26, 27, 28 और एक बार पढ़ेंगे। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है, याद रखना ये बात। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला विनाश का कारण होता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपने इतने सारे वचनों को हमें सिखाया। थैंक यू होली स्पिरिट। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में देखेंगे आज क्या है। ल्यूक 22 चैप्टर 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 22 चैप्टर 1 वर्स से 13 वर्स। 1 सैमुअल 28 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 1 वचन से 13 वचन। पहले शमूएल की पुस्तक 28 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को पढ़ेंगे। अकेले में बैठकर, व्यक्तिगत समय में पढ़ना है, पर्सनल टाइम में पढ़ना है। आप देखें, अब जब हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ते हैं, कितने सारे वचन हमारे ज्ञान के अंदर सुधार लाता है। मैं आपको ज़रूर एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी जिसके अंदर ज्ञान का महत्व क्या है, 5 सेंसेस और समझ का कनेक्शन क्या है, युक्तियाँ और स्ट्रैटेजी, स्कीम, योजनाएं, इनका क्या क्या है, क्या मतलब क्या बनता है। याकूब की पत्री में कहता है कि अगर बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांग ले और वो तुझे निसंकोच देगा। तो निसंकोच मांगने के लिए कहा है। ये सब क्या है, क्या चीज़ें हैं ये, और कितना कुछ लिखा है नीति वचन में ज्ञान के बारे में। धन संपत्ति कैसे आती है, बुद्धि कैसे काम करती है, किस प्रकार से हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है, कैसे हम परमेश्वर चाहता है उस मार्गदर्शन में आ सकते हैं। कितना कुछ लिखा है, ज्ञान, बुद्धि, समझ, युक्तियाँ, ये सब के बारे में, योजनाओं के बारे में, है ना। मैं ज़रूर एक रिकॉर्डिंग आपके लिए बनाऊंगी उसके विषय में। और ये बात है कि हम जब पढ़ते हैं वचन तो इतना कुछ है इसके अंदर कि हम, माय गॉड, हम पूर्ण रूप से सेफ साइड में हो जाते हैं। हम सेफ साइड में, यहोशुआ को बोला था परमेश्वर ने कि तेरे माथे के ऊपर ये वचन बनाए रखना, ये तेरे ध्यान से अलग नहीं होना चाहिए, यही तुझे सफलता देने वाला है। कितना बड़ा उसके ऊपर एक रहस्य का, भेद का एक बड़ा सा रास्ता उसको दिखा दिया परमेश्वर ने कि देख, ये वो रास्ता है जहाँ से अगर तू खुद अपने अंदर से मजबूत रहेगा और तू वचन अपने अंदर से अलग होने नहीं देगा,
तो मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ, परमेश्वर उसको गारंटी दे रहा है। ओके, जब परमेश्वर हमारी ओर से ऐसी कोई बातें बताता है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है? कौन सा फेलियर, कौन सा डिप्रेशन, कौन से प्रकार के अव्यवस्थितपन, कौन सा निंदा, कौन सी तकलीफें, कौन से क्या बातें, क्या पीड़ाएं, क्या खड़े हो सकते हैं हमारे विरोध में? कुछ भी नहीं। आमीन। तो कितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों को भले तरह से हमारे अंदर समेट कर, ओढ़ कर ले ले अपने ऊपर। वो एक चद्दर के समान हम वो वचनों ही से ढक दिए जाना चाहिए। हम नहीं दिखना चाहिए, वचन दिखना चाहिए। ओके, वो महिमा है परमेश्वर की। इतना कुछ होना है, कैसे हम इसे मिस कर सकते हैं? परमेश्वर ऐसा हमको चाहता है कि हम ये अनुग्रह का आत्मा जो हमको हमेशा के लिए हमारे अंदर रहने के लिए मिला है, वो आत्मा हमारी सहायता कर रहा है। हमने उसका लाभ उठाना है, निश्चित हमने इसका लाभ उठाना है। और हम ऐसे जब 2 साल के अंत में देखेंगे, परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे। परमेश्वर हमारा बड़े तरीके से हमारा इस्तेमाल कर सकता है। वो चाहता है, हमको उपयोग करना चाहता है। वो ऐसे टूटे फूटे रास्ते से हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो पहले हमको तैयार करके इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो हमने कभी इसका ये अवसर का हमने ध्यान हटाना नहीं है। ये अवसर हमारे ध्यान में हमेशा अच्छा समय लेकर आना चाहिए। ओके, और ये होने के लिए हमें परमेश्वर ने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं लगाया है हमारे ऊपर। परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर ठहरने के लिए दिया है। वही हमारे अंदर से ये वचनों को सिखाता है। और ये सच्चाई के वचन निश्चित अनुग्रह का आत्मा का हमने लाभ उठाते हुए सीखना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा परमेश्वर पिता अनुग्रह हम में है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता का प्रेम हम में उंडेला गया है, शांत मन हम में आया है और धैर्य हम में रहता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। शुद्धता के कारण परमेश्वर, मन की शुद्धता के कारण परमेश्वर को देखेंगे। तेरा वचन कहता है नम्र को परमेश्वर ऊंचा करेगा। तेरा वचन कहता है मेरे खुदा पवित्र आत्मा से ये सारे वचन जो हमने पढ़े हैं वो सब कुछ खुदा परमेश्वर हमारे अंदर फिट एंड फिक्स बनाने दे। हमें परमेश्वर पिता तेरे व्यवस्थितपन में, तेरे ऑर्डरलीनेस में लेकर आ पवित्र आत्मा। जो परमेश्वर डेस्टिनी में, मंजिल में हमें रखना चाहता है, हमें उसमें ढल कर लेकर आ। और पिता पवित्र आत्मा, हम तुझसे ये भी विनती करते हैं, हमें समृद्ध कर, हमें संपन्न कर। हमारे वो एरिया ऑफ लाइफ जो रुके पड़े हैं, जहाँ से हमको परमेश्वर के जनों को उनके आवश्यकताओं के अनुसार जो देना होता है, हम पिता जो सेवा में देना चाहते हैं, उसमें भी हमें इतना ऊंचाई से बढ़ा दे खुदा परमेश्वर कि हम सोच नहीं सकते हैं कि इतना भी हम कभी दे पाएंगे। मेरे खुदा परमेश्वर ऐसी अवस्थाओं को हमारे अंदर लेकर आ कि हमने कभी नहीं जाना था कि कभी इतने भी महान तरीके से हम अपने अंदर से कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए दे पाए। हम कभी सोचे भी नहीं होंगे। उतने ऊंचे स्तर पर हमको लेकर आ और हमारे धन संपत्ति जितना भी तो हमको दे रहा है, देता रहेगा। हम सब कुछ खुदा परमेश्वर हमारी ज़रूरतें कम करके हम तेरे राज्य में उंडेलते जाने का आनंद उठाने दे। हमें देने वाला बना। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।